Okay, so Swara and Sanika, please pay attention. Everybody is going to pay attention very clearly. Good morning, kids. We are going to learn QBasic today. Okay, in as you are able to see the screen, QBasic का full form क्या होगा? Quick Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code. If you want, you can write it down. If you want, you can take a screenshot. QBasic का full form होगा. Q means quick, B means beginner. As I said, this is a beginning of your coding world. ठीक है? तो quick beginners all purpose symbolic instruction code. Okay, this is the full form of QBasic. Okay, now in this topic subtopic we are going to learn two things, that is QBasic statements and control statements. Now as we learn about algorithms पढ़ा last time सबको, अभी सबको algorithm flowchart लिखना बनाना आ गया, right? So now coming to QBasic program, what is how we are going to write a QBasic program? By using QBasic statements. Okay, I will give you a rough idea. QBasic statement में क्या क्या आ सकता है? प्रिंट स्टेटमेंट आएगा, फिर इनपुट स्टेटमेंट आएगा, फिर लेट स्टेटमेंट आएगा. Okay, all these things will come in QBasic statements. One example I would like to give you is QBasic statement का. Now for example, I am writing in a QBasic editor window. QBasic का editor window में I am writing hello, how are you? ऐसे सिर्फ मैंने लिख दिया तो कंप्यूटर will not understand it. Okay, QBasic language will not understand it. What I have to do. Okay, so उससे पहले मैं क्या लिखूंगी? Print, 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 double quotes में hello, how are you? Okay, or else print, 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 double quotes में hi Swara Sanika, how are you? Okay, like this I am going to write. The moment I write print statement, ठीक है, जैसे ही मैं print लिखती हूँ, कंप्यूटर को पता चलता है कि yes, the user that I want to print the statement. With statement, hello Swara and Sanika, how are you? ये print statement मुझे print करना है, ये कंप्यूटर को पता चल जाता है. क्या पढ़ के? Print पढ़ के. ठीक है? So there are some keywords used in QBasic that I will tell you in when we will go further. Okay. So for now, you have to just keep in mind that we are going to learn about QBasic statements and control statement. Abhi control statement itself tells you to control. Okay. Now I have asked you to print 1 to 10 numbers. ठीक है, मैंने बोला आपको 1 to 10 numbers आपको print करना है. ठीक है, until and unless you does not give any control command to the computer, वो क्या करेगा? वो कंटिन्यू प्रिंट करता ही रहेगा, कंटिन्यू प्रिंट करता रहेगा. तो आपको ऐसे चाहिए, यू वांट ओनली वंस, राइट? एक ही बार आपको प्रिंट करना है, तो यू नीड टू गिव सम कंट्रोल. एक कंट्रोल का स्टेटमेंट आपको देना होगा कंप्यूटर को. देन ओनली ही विल प्रिंट द 1 to 10 वन टाइम. ओके, दिस कंसेप्ट विल गेट मोर क्लियर व्हेन यू विल राइट द प्रोग्राम्स. ओके, फॉर नाउ we are going to learn about control statements and we are going to learn about QBasic statements. Moving further, see QBasic statements. QBasic statements में this many statements, these many things, subtopics we are going to learn. First of all, QBasic का rules. Okay, everything we do, everything we learn, जो भी चीज हम लोग करते हैं, हमें क्या करना है? उसका rule follow करना है. Yes, we need to follow the rules. You come to the school, you're attending the online lectures, उसके लिए भी तुम लोग rule follow करते हो, right? Now school has make a rule that you should sit in a uniform, you should be on time, you should be on you should not eat anything during the lectures. Okay, these everything are rules. Okay, similarly while writing an QBasic statement there are specific rules. Okay, वहाँ पे कुछ specific rules है that you need to follow. Okay, first subtopic हमारा क्या होगा? Rules of QBasic. Next आता है types of mode. दो मोड है, प्रोग्राम मोड है और डायरेक्ट मोड है. अभी ये दो मोड क्या है, that also we will see further, but for now we are having two modes in QBasic. Which two modes? Program mode and direct mode. ठीक है, direct mode and program mode. Next comes QBasic data.
Now QBasic data में whatever things you are writing for a program, whatever things you are using for writing a program, that all things comes under QBasic data. Okay, print command, input command, let command मैंने पहले बताया. Print command हम लोग क्यों use करेंगे? To print the statement. Okay, as I said, मैंने अगर ऐसे लिखा print, मैंने लिखा print, hi विराज, how are you? Are you eating something? अगर मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, तो वो कंप्यूटर क्या प्रिंट करेगा? हाय विराज, हाउ आर यू? आर यू ईटिंग समथिंग? ओके, अगर मैंने प्रिंट नहीं लिखा तो वो प्रिंट होगा? यस, नो, नहीं होगा. ओके, जस्ट कीप इट इन माइंड. अगर आप लोग क्यू बेसिक में प्रिंट नहीं लिखते हो तो नथिंग विल बी प्रिंटेड. बट इफ यू आर राइटिंग अ प्रिंट, then computer will understand that yes, the user want to print this statement. Okay, next comes input statement. Okay, input statement क्या आता है? जैसे कि हम लोग algorithms में लिखते थे, ठीक है, a is equal to 10, b is equal to 10. Okay, तो वो is equal to के बजाय हम लोग क्या लिख सकते हैं? Input a is equal to 10, input b is equal to 20. ऐसे लिखते ऐसे लिख सकते हैं क्या इनपुट स्टेटमेंट में हम लोग? नो, वी आर नॉट एबल टू राइट दिस. जब भी आप इनपुट लिखते हो तब इज इक्वल टू हम नहीं लिखते. प्लीज कीप दिस इन माइंड व्हेनेवर यू आर राइटिंग इनपुट. ओके, यू आर नॉट राइटिंग इज इक्वल टू इन दैट स्टेटमेंट. कीप दिस इन माइंड. तो कैसे लिखोगे आप? इनपुट ए, इनपुट बी. समझ में आया? ठीक है, जैसे ही आप इनपुट ए लिखोगे और जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो कंप्यूटर आपसे ए का वैल्यू मांगेगा, तब आपको वहां पे ए का वैल्यू देना है 10. समझ में आया? अगेन whenever we will do the practical, this concept will get more clear to you all. Okay, next is let statement. let मतलब मैथ्स में you are supposing ना कि suppose we are having this much chocolates, suppose we are having this much apples. ओके, मैथ्स में कंसेप्ट है ना सपोजिंग वाला, सपोज करना है हमें, ठीक है. वैसे ही क्यू बेसिक में भी सपोजिंग का कंसेप्ट है, बट वी आर नॉट राइटिंग सपोज ओवर हियर. व्हाट वी आर राइटिंग? लेट. ठीक है, हम लोग क्या लिखते हैं? LET, लेट. ओके, लेट a इज इक्वल टू 10. अगर वो प्रोग्राम में आपने ऐसे डिक्लेयर कर दिया कि a इज इक्वल टू 10, लेट a इज इक्वल टू 10, तो वो प्रोग्राम में जहां जहां आप a लिखोगे वहां a का वैल्यू वो क्या ले लेगा? 10. Okay, for one easy example I will give you. For example, I am writing a program, ठीक है, let Pradyumna is equal to 30. Okay, and let Kapil is equal to 40. Now जो भी प्रोग्राम मैं लिखूंगी वो प्रोग्राम में जहां जहां कंप्यूटर को प्रद्युम्न का नाम दिखेगा वहां पे प्रद्युम्न की जगह पे वो कौन सा नंबर लेगा? 30. और कपिल का नाम दिखेगा वहां पे कौन सा नंबर लेगा? 20. ठीक है, जो नंबर आप देते हो वो नंबर वो पूरे प्रोग्राम्स में आ जाएगा. ओके, अगेन आई विल टेल यू वन मोर एग्जांपल. लेट मनस्वी इज इक्वल टू 50. ठीक है, मनस्वी इज इक्वल टू 50. लेट एंड लेट श्रेया इज इक्वल टू 20. मनस्वी को 50 दिया, श्रेया को 20 दिया. नाउ होल प्रोग्राम में जहां जहां कंप्यूटर को मनस्वी का नाम दिखेगा मनस्वी की जगह पे कौन सा नंबर आएगा? 50. ठीक है, और जहां जहां पूरे प्रोग्राम में श्रेया का नाम दिखेगा वो श्रेया के नाम की जगह पे कौन सा नंबर लेगा? वो 20 लेगा. ओके, सो ये काम जो है वो लेट स्टेटमेंट करता है. ओके, क्लियर है? प्रिंट, इनपुट एंड लेट. नाउ हाउ टू राइट दिस we will see it afterwards. Okay, moving forward. Main thing, what is a program? Okay, now can anybody tell me what is a program? Okay, so program को हम लोग कैसे define करेंगे? A computer program is a list of instructions that tell a computer what to do. Okay, simple. A computer is a list of a program, list of an instruction that tells a computer what to do. Okay, जो भी statements आप लिखोगे as we are writing, ठीक है, हम लोग algorithm में लिखते हैं. I have asked you to write an algorithm for adding two numbers.
अगर एडिंग टू नंबर्स का प्रोग्राम आप लिखते हो तो कंप्यूटर विल व्हाट इट विल डू, इट विल रीड द प्रोग्राम, ठीक है, और वो प्रोग्राम मीन्स सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, और वी कैन से सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ओके, okay, sorry, a computer what it will do, it will read all the programs, whole statement read करेगा. जैसे ही वो read करेगा उसको पता चलेगा कि yes, यहाँ पे मुझे स्नेहा ने एडिशन करने के लिए बोला है, तो मैं फटाफट ऐड कर देता हूँ और आउटपुट दे देता हूँ. ओके, अगर आप लोग प्रोग्राम ठीक से नहीं लिख रहे हो, ठीक है, प्रोग्राम लिखते लिखते कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कुछ सिंटैक्स एरर हो गया, तो कंप्यूटर क्या करेगा, वहीं पे रुक जाएगा और स्नेहा को बता देगा कि यस स्नेहा, यू हैव डन द मिस्टेक इन दिस लाइन. ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग अ प्रोग्राम ऑफ 5 लाइंस, ठीक है, कितने लाइंस का प्रोग्राम है आपका, 5 लाइन, ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, एक एक लाइन पढ़ेगा, ठीक है, जैसे टीचर आपका आंसर्स पढ़ते हैं ना, वन वन लाइन करके एसेस करते हैं ना, वैसे एक एक लाइन करके वो एक एक लाइन, एक एक वर्ड वो पढ़ेगा कंप्यूटर, और जो भी लाइन में, जो भी वर्ड में उसको एरर दिखा, इट विल स्टॉप देयर. ओके, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा एंड यू विल गेट एन एरर मैसेज दैट यस यू हैव डन एरर ओवर हियर. ओके, okay, so what I was telling, whenever you write a program, ठीक है, प्रोग्राम जो लिखते हो, 5 लाइन्स का प्रोग्राम अगर आपने लिखा है तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको वन बाय वन चेक करेगा, और जहां पे उसको एरर मिला वहां पे वो प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, कंप्यूटर वर्क विल स्टॉप एंड इट विल टेल यू द एरर. एरर कैसे बताएगा, बाय गिविंग एन एरर मैसेज डाउन, ठीक है, नीचे एरर मैसेज आएगा कि इन दिस लाइन यू हैव मेड दिस मिस्टेक. Okay, again, while doing a practical part, you will be able to understand these things. Okay, now I will just read out. A computer program is a list of instructions that tell a computer what to do. Okay, everything a computer does is done by using a computer program. A computer program is written in a programming language. Examples: web browser like Mozilla Firefox and Apple Safari can be used to view web pages on the internet. Now, one more thing. If I say कि मैं Mozilla Firefox use करके मैं Word document बनाती हूँ, am I able to do it? Can I write format in Mozilla Firefox? Do you all know what is Mozilla Firefox? Okay, do you all know what is Google Chrome? Yes, Shreyans is knowing. Google Chrome पता है सबको? Yes, अच्छा, Google Chrome में मैं Word document एडिट कर सकती हूँ? नो ना, नहीं कर सकती ना. ओके, गूगल क्रोम में मैं अगर मुझे एल्गोरिदम लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ, मुझे पेंट करना है तो मैं पेंट कर सकती हूँ. नो, गूगल क्रोम का काम क्या है, टू सर्च द थिंग्स, इट विल डू सर्चिंग, ठीक है. अभी MS वर्ड में मुझे अगर सर्च करना है, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दिया है टीचर ने, ओके, आपको टीचर ने इंफॉर्मेशन दिया है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव आस्क्ड पूर्वजा to write to search the topic on environment, ठीक है, एनवायरमेंट पे सर्च करने के लिए मैंने पूर्वजा को बोला. सो पूर्वजा ने यूज किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन. बराबर है या रॉन्ग है? what she will use, what she should use, give an answer in a chat box. What she should use, which गूगल क्रोम. वेरी गुड, वेरी गुड. सो शी शुड यूज गूगल क्रोम. मतलब हर चीज, हर काम जो चीज है वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन ही करता है. ओके, नाउ इफ समवन आस्क यू कि चलो अथर्व आप 10th स्टैंडर्ड का आंसर दो, तो अथर्व दे पाएगा आंसर 10th स्टैंडर्ड का? फर्स्ट स्टैंडर्ड को के बच्चे को हम लोगों ने बोला ओके नाउ यू टेल मी व्हाट इज एल्गोरिदम, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा एल्गोरिदम बता पाएगा? नो. सो व्हाई आई एम गिविंग दिस एग्जांपल्स, बिकॉज everything is
done by a particular software only. Okay, as I can tell you, जो games आप लोग खेलते हो, right, वो games आप एक game software है उसी में खेल सकते हो, ठीक है, वो आप वर्ड एप्लीकेशन, पावर पॉइंट एप्लीकेशन में नहीं कर सकते. ओके, तो ये जो लाइन है ना, अब कंप्यूटर प्रोग्राम, a computer program is written in a programming language, okay, and everything computer does is done by using a computer program only. Okay, हर चीज, हर सॉफ्टवेयर, जो भी आप सॉफ्टवेयर दिख रहे हो, ठीक है, जो हमारे स्कूल का फीस सॉफ्टवेयर है, जो हॉस्पिटल में बिलिंग सॉफ्टवेयर है, जो मेडिकल्स में बिलिंग सॉफ्टवेयर है, वो हर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक प्रोग्राम लिखा गया है. ओके, हर एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक प्रोग्राम लिखा गया है. Is it clear, everyone? Okay. Now, a computer program is stored as a file on the computer hard drive. When a user runs the program, a file is read by a computer, and the processor reads the data in the file as a list of instructions. Then the computer does what the computer is told to do. As I said, computer reads your program one by one, लाइन बाय लाइन, ठीक है, जैसे आपने प्रोग्राम लिखा है वैसे ही वो रीड करेगा. ऐसे नहीं है कि फर्स्ट लाइन के बाद सीधा वो 10th लाइन पे आएगा. नो, फर्स्ट के बाद वो सेकंड लाइन पे ही आएगा. ओके, कीप दिस इन माइंड. कंप्यूटर नेवर ओवरलैप नहीं करता है वो, ठीक है. आप लोग करते हो ना, अगर टीचर ने 10 क्वेश्चन दिया तो फर्स्ट क्वेश्चन के अलावा देखने से पहले आप 10th क्वेश्चन देख लेते हो कि 10th क्वेश्चन क्या है ना, करते हो ना ऐसा? यस और नो? ऐसे ही करते हो ना? बट कंप्यूटर इज नॉट डूइंग इट, इज व्हाट इट इज डूइंग, इट इज गोइंग वन बाय वन ओनली. ओके, सो नेक्स्ट, अ कंप्यूटर प्रोग्राम is written by a programmer. Now for example, आदर्श is writing a program. ठीक है, आदर्श प्रोग्राम लिख रहा है, तो आदर्श क्या हो जाएगा? प्रोग्रामर हो जाएगा. ओके, the one who is writing a program is known as programmer. ठीक है, many times you have heard कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ये बनाया, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होगा? प्रोग्रामर होगा. उसने वो प्रोग्राम बनाया है, तो उसने उसका दिमाग लगा के बड़ा कोड लिखा है, वो कोड रन करके फिर वो सॉफ्टवेयर बना है. ठीक है, समझ में आया ये सबको? सी किड्स, नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ सी what you all can see over here. एक सीपीयू है, दक्ष को नींद आ रही है. एक सीपीयू है और उसके बाजू में एक कोड है. नाउ आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट कोड? कंप्यूटर ने पूछा, सीपीयू ने पूछा, टेल मी व्हाट टू डू. ओके, और वहां पे हमने लिखा है हियर इज योर प्रोग्राम. अभी वो 0 1 0 1 0 देख के तुम लोगों को पता चल रहा है व्हाट इज द प्रोग्राम? लेट मी आस्क समवन. यस, Yes, teacher. हाँ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट दैट कोड इज? वो बॉक्स No. में जो कोड लिखा है, नो ना? सो व्हाट वी कैन डू इट. ओके, म्यूट योरसेल्फ. तनिष्का, okay, I think she's not there. Fine. Now, can anybody tell me which code computer understands? Which code computer understand? You can give the answer in a chat box also. Chat box में भी answer दे सकते हो. Which code is computer understanding? Which language? Yes, Manasvi, very correct. Manasvi, very correct. 0 and 1. Okay. अब 0 and 1 को क्या बोल? No, Vidisha, no. 0 and 1. 0 and 1 को हम लोग क्या बोलेंगे? Please give the answer in a chat box. Programming, no, Tanishka. 0 and 1 को हम लोग क्या बोलेंगे? Which language? Binary language बोलेंगे? Machine language बोलेंगे? Okay.
which is understood by computer, language of a computer. Yes, Sakshi, you are right, language of a computer, but it is known as what? It is known as machine language, okay, or binary language. Okay, now as I have given you an example, one more I am giving. uh, Aditya, where are you going? Aditya Vadkar. ओके, मैंने बोला कि हाय श्रेयांश, हाउ आर यू? ओके, अब ये तो मैंने हम मेरे लैंग्वेज में बोल दिया, ठीक है, हाय श्रेयांश, हाउ आर यू। ना कंप्यूटर को पता चलेगा कि मैंने क्या बोला? नो ना। तो कंप्यूटर क्या करेगा? हाय श्रेयांश, हाउ आर यू को बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करेगा, दैट इज 010101, जो हम लोगों को नहीं समझ में आता है, ठीक है, जो हम लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। और उसके बाद वो समझेगा कि हाँ, मुझे जागृति टीचर ने हाय श्रेयांश, हाउ आर यू प्रिंट करने के लिए बोला है, तो वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मुझे उसका आउटपुट देगा। गॉट इट? यस, समझ में आया? वर्किंग समझ में आया कंप्यूटर का और हम लोगों का वर्किंग कैसे होता है? वी आर गिविंग द इंस्ट्रक्शन इन आवर लैंग्वेज, ओके, हम लोग सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं। लिसन, वी आर नॉट यूजिंग एनी अदर लैंग्वेज, ओके, हिंदी, मराठी, तमिल, नथिंग। कंप्यूटर के साथ वी आर यूजिंग ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, दैट ऑल्सो इजी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इजी इंग्लिश लैंग्वेज वी आर यूजिंग। वो इंग्लिश लैंग्वेज को फिर बाद में वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके हम लोगों को आउटपुट देता है। समझ में आया एवरीवन? ठीक है, सो ये जो पिक्चर है उसी तरह से है। टेल मी व्हाट टू डू, सीपीयू इज आस्किंग, हियर इज योर प्रोग्राम 0101 में है। अब वो 0101 के पीछे क्या प्रोग्राम था, दैट आउटपुट में ही हमको पता चलेगा, ये देख के हमें पता नहीं चलेगा। ओके, मूविंग नेक्स्ट, द क्यू बेसिक, our main topic. As I said, this is a programming language developed by Microsoft to type, edit, debug and execute basic programs. Okay, क्या है ये? It is a programming language developed by Microsoft. किसने develop किया था? Microsoft ने. It is used in MS-DOS operating system. Okay. Nowadays, we are able to use it in Windows 7 also, Vista also, XP also, Mac OS X also, and Linux also. Okay, QBasic ये सारे versions में work करता है. Okay, as I said, QBasic uses English like words and mathematical symbols. ठीक है, A to Z में जितने भी अल्फाबेट्स आते हैं वो सारे अल्फाबेट्स यूज करता है, स्मॉल, कैपिटल, एवरीथिंग। फिर सिंबल्स, प्लस, माइनस, semicolon, comma, then double inverted commas, every symbol is it is using, and mathematical symbols also. Now, can anybody tell me what is the mathematical symbols? Give the answer in a chat box. मैथमेटिकल सिंबल्स का मतलब क्या होगा? नाउ आई हैव आस्क्ड टू 21 to 30 रोल नंबर्स जो है वो हाथ ऊपर करेंगे। ओके, व्हाई हैव यू haven't raised your hands? Yes. Okay, I think nobody is ready to give the answer. Okay, I only will tell. Mathematical symbols matlab plus, minus, division, multiplication, all these symbols comes under mathematical symbols. Okay, now to write a program, we are using all these things, that is English words and mathematical symbols. Okay, the main thing, the main point, okay, the extension of QBasic program file is .bas. You have to keep this in mind. .bas is the extension of your QBasic program. Extension मतलब जब सेव करते हो, राइट, प्रोग्राम सेव करते हो तो वो .bas के साथ सेव होता है। जैसे कि वर्ड फाइल किससे होता है? वर्ड फाइल किससे होता है? .doc से, ठीक है। पीपीटी का फाइल किससे होता है? .ppt से। तो QBasic का फाइल किससे होगा? .bas से। ओके, last topic for this session, rules of QBasic.
फर्स्ट रूल हमारा, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. फर्स्ट रूल क्या होगा? ऑल क्यू बेसिक प्रोग्राम्स आर मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स which are executed in the order which they are written. Okay, as I said, हर एक प्रोग्राम सीरीज ऑफ स्टेटमेंट से बना रहेगा. कोई भी क्यू बेसिक प्रोग्राम 2 लाइन का या 4 लाइन का नहीं होगा. इट विल बी एक्सटेंडेड अप टू 5 to 6 लाइन्स. ओके, और हर एक लाइन एक के बाद एक एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, 1 के बाद 2 ही होगा, 1 के बाद 3, थर्ड लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा. समझ रहे हो? ओके. सेकेंड वन, एवरी स्टेटमेंट शुड हैव एटलीस्ट वन क्यू बेसिक कमांड वर्ड. द वर्ड दैट बेसिक रिकॉग्नाइज आर कॉल्ड कीवर्ड्स. जैसे कि मैंने बोला आपको, प्रिंट हो गया, लेट हो गया, इनपुट हो गया, ये सब क्या है? क्यू बेसिक कीवर्ड्स. अगर ये आप नहीं लिख रहे हो, जैसे कि मैंने बोला कि मैं सिर्फ ऐसे लिखती हूँ, हाय तनिष्का हाउ आर यू, तो हाय तनिष्का हाउ आर यू को क्या करना है? कंप्यूटर विल नॉट अंडरस्टैंड. तो इट इज वेरी नेसेसरी टू राइट प्रिंट बिफोर दैट. प्रिंट हाय तनिष्का हाउ आर यू. जैसे ही प्रिंट पड़ेगा, कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड, यस आई हैव टू प्रिंट दिस स्टेटमेंट. ओके, सो इट इज वेरी नेसेसरी टू राइट दैट वर्ड्स. मेन वर्ड्स लिखना जरूरी है. Okay. Third one, all the command word have to be written using one standard rule, which are known as syntax rules. Now, syntax doesn't mean that syntax water tank. Okay, यहाँ पे syntax का मतलब क्या है? रूल्स टू राइट अ स्टेटमेंट. जो प्रिंट कमांड में आपको बोल रही हूँ, इनपुट कमांड में आपको बोल रही हूँ, वो चीज लिखने का एक रूल होता है. ठीक है, वो रूल क्या होता है? दैट आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स एंड विल मूव टू द प्रिंट सेशन. ठीक है, समझ में आया? सो दिस syntax is a grammar of writing the statement in a language. Syntax error are generated when improper syntax is detected. Okay, syntax का मतलब क्या होता है? One type of rule to write the statement. Okay, so that's all for today. I hope you all have understood up to this. If any doubts, you can ask me.